Hello students, I Rakesh Chauhan welcome you all in the e-learning classes of physics initiated by Suraj Group of Schools. Today in this video we are going to discuss about AC circuits, and in our previous video, as you can recall, we have discussed about RMS value, average value, instantaneous value of alternating current, and we have also discussed some numerical problems in our last video. So here we are going to discuss about AC circuits. So there are so many types of AC circuits in which we can study the very basic circuit that contains only resistance, thereafter the circuit containing inductance, thereafter the circuit containing capacitance, and the combinations of resistance and inductance, resistance and capacitance, or the combination of all three elements, that is R, L and C. So we are going to discuss all these circuits one by one, but here in this video we are going to focus on the circuit consisting of resistance only. So the very first and basic circuit or simple circuit, we can say AC circuit, is the AC circuit containing resistance only, containing R only or resistance only, we can say resistance only. So suppose this is the resistance whose value is R, and it is connected with an AC source, and you know the symbol of AC is like this, and the reason is clear because we normally take sinusoidal AC. So the symbol of AC is this and the symbol of DC is like this. So this signal or symbol we have used up to chapter 6, you can say. So this is now in this chapter we are going to use this signal or symbol for AC signal. Okay, and we have to also assume the value of AC. So suppose हमने जो AC इसमें अप्लाई किया है वो है V is equals to V naught sin omega t. So as you can see that the instantaneous value of current we have written as IT is equals to I naught sin omega t. So बिल्कुल उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को भी लिख सकते हैं. IT की जगह VT आ जाएगा, I नोट की जगह V नोट आ जाएगा, और sin ओमेगा t विल रिमेन एज इट इज. मतलब जिस तरीके से करंट वेरी कर रही है उसी फ्रिक्वेंसी से वोल्टेज भी वेरी करेगा, केवल पीक वैल्यू करंट की और वोल्टेज की चेंज होगी. तो इसलिए हम जितने भी AC सर्किट्स यूज करेंगे उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज की जगह यूज करेंगे VT इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा t. ओके, सो अगर हमने यहाँ पर AC अप्लाई किया है तो डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो होगी. हालांकि करंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होगी क्योंकि वो हर एक हाफ टाइम इंटरवल के बाद चेंज होगी. तो किसी एक मोमेंट के लिए मैंने करंट की डायरेक्शन इस तरीके से मान ली और ये IT करंट सपोज इसमें फ्लो हो रही है. तो बेसिकली हम इस करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी और वो किस तरीके से वोल्टेज के साथ वेरी करेगी, ये हमें एक्चुअल में इसमें स्टडी करना है. ओके, तो इसके लिए हमने KVL अप्लाई इसमें किया. अगर आपको याद हो तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ्स वोल्टेज लो और किरचॉफ्स करंट लो पढ़ा था. तो यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई करूँ तो KVL क्या कहता है, जो भी वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो एक्चुअली जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. मतलब वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ऑन द वेरियस रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन दैट circuit or that closed loop. So here the closed loop is this only resistance. This circuit is containing only resistance. Therefore there is no other element. So applying KVL in the loop as shown in the figure, and according to KVL the voltage supplied by the AC source, that is VT, is equals to the voltage drop on this resistance, and the voltage drop on this resistance or instantaneous voltage drop on this resistance will be
I into R according to Ohm's law. So I can write down it as IT into R. And what is Vt? So Vt is V naught sine omega t. So if I put the value V naught sine omega t is equals to IT R, and I want to write the expression of this instantaneous value of current. So IT is equals to V naught upon R sine omega t, and this is the peak value of voltage divided by resistance, and voltage divided by resistance according to Ohm's law, it is the peak value of current. So in place of V naught upon R, I can write down the peak value of current, I naught sine omega t. This is the instantaneous value of current. So suppose this was equation first and this is equation second. Now you can compare these two equations. The first equation is representing the instantaneous value of voltage, and the second equation is representing the instantaneous value of current. And you can see here that here also this is sine omega t, and here also this is sine omega t, and the only difference is in their peak value. यहाँ पे पीक वैल्यू V नोट है, जबकि यहाँ पे पीक वैल्यू I नोट है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में. फेज में होने से क्या मतलब है, जैसे इस एंगल को जो साइन के साथ होता है उस एंगल को फेज एंगल कहा जाता है. तो यहाँ पे फेज एंगल है ओमेगा टी और यहाँ पे भी फेज एंगल है ओमेगा टी. तो इसका मतलब दोनों का जो फेज एंगल है वो सेम है. तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो जीरो. इस फेज एंगल में से अगर मैं इस फेज एंगल को माइनस करूं तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा. मींस दोनों जो वेव्स हैं या दोनों जो आप कह सकते हो करंट और वोल्टेज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं वो एक साथ चलेंगी, या इसको हम कहते हैं इन फेज होगी. तो यहां हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. What can be written? The instantaneous value of current through resistance R is same or is in phase with the instantaneous value ऑफ वोल्टेज. सो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि बहुत ही बेसिक सर्किट है. प्रूव दैट इन द एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली द करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज. तो आपको यहां तक इसको प्रूव करके दिखाना है कि आई टी आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जबकि वी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी था. दोनों में फेज एंगल सेम है, मतलब दोनों इन फेज है. फेज एंगल सेम होना मतलब इन फेज होना. इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं. इन फेज होने का क्या मतलब है? इन फेज होने का मतलब है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है तो करंट भी मैक्सिमम होगी, जब वोल्टेज मिनिमम हो रही है तो करंट भी मिनिमम होगी, जब वोल्टेज नेगेटिव हो रही है तो करंट भी नेगेटिव होगी. तो अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इन फेज होना. ओके. और आउट ऑफ फेज भी एक कॉन्सेप्ट होता है. आउट ऑफ फेज होने का मतलब जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम. तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज होना या 180 डिग्री का शिफ्ट होना. एक बार चेक कर लेते हैं. सपोज ये जो वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म है वोल्टेज की. दिस इज द साइनोसोडल वोल्टेज. आप समझ सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन वेव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एट t इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ साइन इज 0 एंड वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ साइन वेव. सो दिस, इफ आई रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज
then how we will represent the instantaneous value of current? So you will say both are in phase. Both are in phase means their peak values will be happening at the same time, or we can say their minimum value is happening at the same time, or both are following each other, we can say. But there will be some difference in magnitude, because the peak value here is V naught. The peak value of voltage is V naught, while the peak value of current is I naught. And since I naught is V naught divided by some resistance, therefore the magnitude will be less than the magnitude of V naught. Magnitude of I naught, or the value of I naught, will be less than the value of resistance if the resistance is greater than 1. Okay, so the waveform of current will be like this, because this is the peak value of I current, and you can see that the peak value of voltage and current is taking place at the same time. That is, if this time is t by 2, as you know, then definitely this will be t by 4, and this is 3t by 4, and this is t. So you can see here that at t is equal to t by 4, both the value of voltage and current is positive and maximum. At t is equal to t by 2, both the values of current, instantaneous current through resistance, and voltage is same, that is 0. And at t is equal to 3t by 4, once again the voltage and current are maximum, but in negative, we can say. So current is exactly following the voltage, or the voltage is exactly following the current. That's why they are said to be in phase. So ये word आपको याद हो जाना चाहिए. What is the meaning of current and voltage are in phase? Okay, let us discuss one more diagram which is known as phasor diagram. In all the circuits we are going to draw the phasor diagram, because this is also sometimes asked in exam. phasor diagram. phasor diagram basically क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, और उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज को बताता है. या आप कह सकते हो कि हम उसकी हेल्प से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज वेव फॉर्म, और अब हम पढ़ रहे हैं फेजर डायग्राम. सो फेजर डायग्राम अप्रोच में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, this is suppose the rotating vector. This is the rotating vector which is rotating at omega speed. ठीक है, किसी टाइम पर इसने जो एंगल बनाया है जिसको हम फेज एंगल कह रहे हैं वो है ओमेगा टी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट को, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ठीक है, इसी तरीके से हमें करंट का भी फेजर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो पहले वोल्टेज के फेजर को अच्छे से ड्रॉ करते हैं. इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. 11th क्लास में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. ये यहाँ से यहाँ तक वी नॉट है, तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा वी नॉट कोस ओमेगा टी. ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज वी नॉट कोस ओमेगा टी, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और इस वर्टिकल कंपोनेंट को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी से. तो वी नॉट साइन ओमेगा टी तो देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एसी की, तो इसका मतलब इस वेक्टर का, इस फेजर का, जिसको हम फेजर बोलते हैं, इस फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है. ओके, बिल्कुल इसी तरीके से हमें करंट का भी फेजर ड्रॉ करना है. तो आप कहेंगे सर करंट का और वोल्टेज का जो फेजर है वो सेम फेज एंगल के साथ चल रहा होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रही हैं, इन फेज हैं.
तो इसका मतलब जितना एंगल करंट के वोल्टेज के फेजर ने बनाया है बिल्कुल उतना ही एंगल करंट के फेजर ने भी बनाया होगा, करंट का जो पीक वैल्यू है उसने भी बनाया होगा, बट पीक वैल्यू ऑफ करंट इज स्लाइटली लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इफ द रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ पर इसको अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कि ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो अगर ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है तो इसको भी हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा आई नोट कोस ओमेगा टी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आई नोट। और ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हम करंट के फेजर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। मतलब वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फेजर की हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से, रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम। So this is all about the AC circuit containing resistance only. So this is the very basic circuit or which consists of AC source. In our next video we are going to discuss that the AC circuit containing inductance and the AC circuit containing capacitance only. Thank you very much for watching the video.